Good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine, and I am also fine. Then, the three rules you have to explain in previous video. So, let's start today the next step, and that is pronoun. Today I will explain you about pronoun and the chart and how do you change pronoun. You have to understand it very attentively. Okay? Then look at the blackboard. Pronoun. What is the pronoun? The word which is used in place of noun is called pronoun. Then the pronoun has been divided according to person into three parts. Let's see the chart. Person, first, second, and third. Subjective case, that is objective case, and it is possessive case. Now, let's see. In subjective case of first person, pronoun I and we. Objective case of I and we, it is me and us, and possessive case of I and we, that is my and our. In subjective case of second person, objective case and possessive case, you and your. Third person, he, she, it and they. Objective case, him, her, it and them. And possessive case, his, her, its and their. You have to learn it on our fingertips. Then, while changing a direct speech into indirect form of speech, we have to change these types of pronoun. Okay? Then let's see how to change pronoun. To change the pronoun, we have to apply only 4 steps
Through these 4 steps you can change the pronoun very easily. That is how to change pronoun. Step first. Find out which person is given of the pronoun. जिस प्रोनाउन को आप चेंज करना चाहते हैं उसका पर्सन कौन सा है, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. इट मींस पर्सन इज इक्वल टू क्वेश्चन. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. सबसे पहले आपको पर्सन का पता लगाना है, ठीक है. आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट, अप्लाई 1, 2, 3 upon SON. What is 1, 2, 3 upon SON? If all these are person and this is the changing method respectively. If you are given the pronoun of first person, then the pronoun must be changed according to the subject of reporting speech. If you are given the pronoun of second person, then the pronoun would be changed according to the object of reporting speech. And if you are given any pronoun of third person, then it will be never changed. Okay? How to change? You are given the direct speech in this form, like this. The portion which is before the inverted commas, that is reporting speech, and here the subject of reporting speech, object of reporting speech, and that is reporting verb. Clear? Pronoun always would be changed in reported speech. There is no changing in pronoun of reporting speech. हमेशा प्रोनाउन आपको रिपोर्टेड स्पीच के बदलने हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगी. ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन ऑलवेज रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो पोर्शन है उस पोर्शन के बदले जाते हैं. इन्वर्टेड कोमास के बाहर के पोर्शन में, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंजिंग प्रोनाउन में नहीं होती है. तो यहां पर आपको कोई प्रोनाउन दिया जाता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. तो अगर यहां पर आपको कोई भी पर्सन दिया जाता है, तो ये जो यहां पर जो प्रोनाउन आपको दिया है, सबसे पहले आपको पता लगाना है, आपको फाउंड आउट करना है कि इसका पर्सन कौन सा है. ऑल दीज आर रिलेटेड टू फर्स्ट पर्सन, ऑल दीज टू सेकंड पर्सन, एंड दीज आर टू थर्ड पर्सन. ओके? देन इफ यू आर गिवन फर्स्ट पर्सन, if you are given first person, pronoun of first person, the pronoun, the particular pronoun must be changed according to subject of reporting speech. This is 1, 2, 3 upon us. Means the pronoun of first person must be changed according to the subject of reporting speech that is put here. And if you are given in the reported speech, in this partition, in this portion, if you are given the pronoun of second person, then the pronoun must be changed according to the object of reporting speech. Then that is put here. The pronoun of second person must be changed
according to this object. That is this. And third person, if in the reported speech you are given the pronoun of third person, that must be never change. उसको आप कभी नहीं बदलेंगे, उसको आप एज इट इज रख देंगे. सपोज हियर यू आर गिवन ही, यू आर गिवन इट्स, यू आर गिवन देम, यू आर गिवन हर, then these all pronouns would be never change. ये कभी नहीं बदले जाएंगे. क्लियर है? Then third point is notice the case of given pronoun. गिवन प्रोनाउन के जो भी प्रोनाउन इनमें से आपको दिया गया है उनके केस को आप नोटिस करें. केस को, केस मीन्स वो जो प्रोनाउन आपको दिया है दैट इज रिलेटेड टू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस. इस बात को आपको नोटिस करना है. एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, you have to put the pronoun in the same case. You have to put the pronoun in the same case. आपको भी जो प्रोनाउन रखना है वो उसी केस का रखना है. कौन से केस का? जिस केस को आपने यहां से नोटिस किया है, आपका प्रोनाउन भी उसी केस में होना चाहिए. These are only the 4 steps through which you can change the pronoun very easily. That is very necessary. Listen once again. First of all, you have to go in repeated speech. सबसे पहले आपको यहां पर जाना है, जाकर के देखना है कि जो प्रोनाउन आपको दिया गया है वो कौन से पर्सन का है. क्लियर? उसके बाद में आपको ये देखना है कि वो जो प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, वो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा. ठीक है? फिर आपको ये देखना है कि जो दिया हुआ प्रोनाउन है उसका केस कौन सा है, और फिर आपको वही प्रोनाउन चेंज कर वही केस रख देना है जो आपको दिया गया है. अभी हम यहां पर चेंज करके देखते हैं. देखिए, सपोज यहां पर आपको ही रखा गया है, इस तरीके से सेंटेंस में कुछ कहा गया है और यहां पर हिम रख दिया गया है. दैट इज योर रिपोर्टिंग स्पीच. यहां पर कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास बिगिंस, and this is your reported speech, inverted commas closed. What is this? This is the subject of reporting speech. What is this? This is the object. यहां पर आप मीट करिए. This is the object of reporting speech. क्लियर? ये पूरा का पूरा पोर्शन कौन सा है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है. रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वाला पार्टीशन है. तो यहां पर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की तरह ही को रखा गया है. ठीक है? और ऑब्जेक्ट की तरह मी को रखा गया है. अब यहां पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है. ये रिपोर्टेड स्पीच में सपोज आपको यहां पर आई रखा गया है. क्लियर? उसके बाद में योर रख दिया गया. आगे आप चले तो हिम रख दिया. फिर और आगे आप चले तो फिर आपको मी दे दिया गया. इस तरीके से प्रोनाउन आ रहे हैं सेंटेंस में, और वो आपको किस तरीके से चेंज करने हैं हम ये देखते हैं. देखिए, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए चेक द 4 स्टेप्स वेदर इट इज राइट और नॉट.
सबसे पहले आपको आई को चेंज करना है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखिए कैसे, हम इस आई को, आप यहां पर जाते हैं और इसको हमने सर्किल में रख दिया, ये आई है। ये आई पर्सन का पता लगाना है तो आप पर्सन में यहां जाएंगे, देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, ये रहा फर्स्ट पर्सन। क्लियर? तो आई आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है, ये देखिए। फाइंड आउट विच पर्सन इज गिवन ऑफ द प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, इसका कौन सा पर्सन दिया गया है? फर्स्ट पर्सन दिया गया है। तो मैंने पर्सन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के सामने यहां पर लिख दिया, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमें दिया गया है। क्लियर? अब यहां पर आप अप्लाई 1 2 3 अपॉन एस ओ एल, जब हम ये करते हैं, अप्लाई करते हैं 1 2 3 अपॉन एस ओ एल को, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है 1 अपॉन एस। ये वाला कॉम्बिनेशन यहां से निकल कर आता है। ये 1 कहां से आया? ये 1 ये वाला, देखो ये ऊपर सब पर्सन लिखे हुए हैं ना, और पर्सन यहां से कौन आया? फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में किसका कॉम्बिनेशन है? एस का। तो यहां पर हमारा ये कॉम्बिनेशन बन गया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन एस, एस फॉर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का। ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाएंगे। और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन है? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही। तो आपको एक बात पता लग गई कि ये जो आई है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको आई दे रखा है ना, ये आई सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर ए मोमेंट यहां पर ही रख देंगे, फॉर ए मोमेंट। क्लियर? एंड नाउ वी हैव टू चेक that the pronoun is correct or not. So to check the pronoun, go at the third point. Notice the case of given pronoun. Given pronoun कौन है? I. I के केस को नोटिस कीजिए। I के केस को हमने यहां पर लिख लिया, that is subjective case। ठीक है? I का केस सब्जेक्टिव है, ये लिख लिया। क्लियर? अब आपको फोर्थ पॉइंट में जाना है, यू हैव टू पुट द प्रोनाउन इन द सेम केस। आपको भी उसी केस का प्रोनाउन रखना है, यानी कि जो आपको दिया गया है। हमें कौन दिया गया है? हमें सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आई दिया गया है ना, तो आप जो रख रहे हैं उसका केस भी सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। क्लियर? अब उसका केस आपने क्या रखा? आपने ही को रखा है। क्लियर? चार्ट में देखिए ही कहां पर है, चार्ट में ही ये रहा। ठीक है? अब आप देख लीजिए, क्या इसका केस भी सब्जेक्टिव ही है? ही, सीधे चले जाइए, यस, ये भी सब्जेक्टिव वाली रो में रखा है। ठीक है? तो यहां पर आपको आई दिया गया था, उसका केस सब्जेक्टिव था, आपने चेंज करके ही रख दिया है, उसका केस भी सब्जेक्टिव है। तो आपने जो प्रोनाउन वहां पर रखा है दैट इज करेक्ट, वो सही है। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा है? अगर बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में जाकर के अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। अब आप आगे चलिए। अब हमें योर दिया गया है, देखते हैं कैसे बदलते हैं। अब आपको योर दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल इन द सेम वे यू हैव टू चेंज द प्रोनाउन एंड आप ये देखिए अब क्या होता है। योर, सबसे पहले भाई पर्सन को फाइंड आउट करना है कि पर्सन कौन सा है। क्लियर? ये रहा योर, इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल में योर को ले लिया। ठीक है? योर दे इट इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन को आपको चेंज करना है, दैट इज योर। यहां पर टू आ गया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, टू के साथ में कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट का हो गया। ठीक है? ऑब्जेक्ट मी है, तो फॉर ए मोमेंट वी पुट हियर मी एंड नॉट इज द केस। योर का केस कौन सा है? दैट इज पॉजेसिव केस। यहां पर पॉजेसिव केस है। ठीक है? आपने जो रखा है मी,
मी का केस कौन सा है? मी ये रहा, ये आपने रखा है, इसका केस है ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर आप गलत हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि आपको पॉजेसिव केस दिया गया था, उसकी जगह पर आपने ऑब्जेक्टिव केस को यूज कर दिया है ना, तो आप गलत हो गए हैं। फिर आपको क्या करना है? आपको भी अपने प्रोनाउन का केस पॉजेसिव ही बनाना है। ठीक है? तो आपका प्रोनाउन जो आपने रखा है वो कौन है? वो मी है, जो ऑब्जेक्टिव केस का है। आपको भी क्या बनाना है? आपको भी इसका केस पॉजेसिव बनाना है, क्योंकि आपको पॉजेसिव केस ही दिया गया था, इसीलिए आपको भी पॉजेसिव ही रखना है। तो यहां पर आप मी ना रख के माई रखेंगे। मी गलत, माई राइट। गॉट इट स्टूडेंट्स? समझ में आ रही है? उसके बाद में यहां पर आपको हिम दिया गया है। हिम कहां पर है? हिम ये रहा। हिम दैट इज थर्ड पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू 1 2 3 अपॉन SON थर्ड पर्सन इज नेवर चेंज। तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज होता है, तो यहां पर हिम को हिम ही रख देंगे। क्लियर? एंड मी के साथ में मी फर्स्ट पर्सन, ये रहा मी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन है? दैट इज ही। तो आपको मी को चेंज करना है। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन एस का होता है, दैट इज ही, तो हमने यहां पर ही रखा है। ठीक है? अब केस देखिए, थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। केस देखिए, मी आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है? मी अब की बार आपको ऑब्जेक्टिव केस में दे दिया, और जो आपने रखा है वो क्या रखा है? ही, वो आपने सब्जेक्टिव केस का रख दिया, दैट इज रॉन्ग। ठीक है? तो क्या करें? जो आपने रखा है, क्या रखा है आपने? ही, वो कौन से केस का है? वो सब्जेक्टिव केस का है। आप इसका केस ऑब्जेक्टिव कर दीजिए, और इसका केस ऑब्जेक्टिव कौन हो जाता है? हिम हो जाता है। तो आप मी की जगह ही नहीं रखेंगे, हिम रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? टुडे वी ओवर द वीडियो राइट नाउ, एंड यू हैव टू लर्न इट very attentively. It is the base of narration if you want to convert a direct speech into indirect form of speech. Okay? So, bye and see you tomorrow. Thank you very much.